Now the mRNA sequence is this. Okay, this is your E site, this is your P site, and this is your A site. This is your amino acid site, this is your peptidal site, and this is your exit site. So first amino acid will sit on your, so that's the only amino acid that sits on your P site. Rest all of the amino acids will come through A site. Okay, so what will happen now? Who is AUG methionine? Come. Cold. It needs energy. Come here. Come here. Turn around. So she will need energy, EFPU with GTP. This is the factor, EF we call it elongation factor. With GTP comes and it binds with this, and once it's bound to this, now it is ready to be. Now यहाँ पर आपकी जो sequence है, that's ATG, okay, and peptidal site you will sit, good, awesome. Once you will sit on this side, what will happen? GDP will come out. Okay, GDP will come out, and EFQ will also come out, and the PI will also come out. Okay, the energy was used in. Okay, now the next in sequence is CCC, that's here. So this is a mRNA. Okay, so the first sequence was ATG, now it's CCC, and above this is your Shine-Dalgarno sequence in case of prokaryotes, Kozak sequence in case of eukaryote. That will bind to the or near to the 18S ribosome RNA. Okay. Now once this is done, next amino acid is proline. So proline, who's proline? Come. So we have already seen that this bond between proline and its prolyl tRNA was made by which enzyme? Prolyl tRNA synthetase. And now you cannot go there unless you have this pass. So you take this pass. But now you will enter the amino acid site. Good. Now अब क्या होगा? ये निकल जाएगा. Okay, so हम यहाँ पर. Now this methionine and this proline has to make a bond because we are making an amino acid chain of proteins, right? इसके लिए हमें एक और एंजाइम लगता है, that's called as EFG, also translocase. This also has GDP. Okay. So process देखो क्या होगा. They both will shift. Okay, and the mRNA. ठीक है, ये mRNA है ना? They will have to shift. मतलब mRNA क्या होगा? ये पूरा जो है कॉम्प्लेक्स राइबोसोम का इस पर mRNA पर चलेगा. जब ये आगे चलेगा तो ये जो सीक्वेंस है ये पीछे रह जाएगी. ठीक है, और तुम्हारी जो नई सीक्वेंस है वो अब क्या होगा? This will move to this. She will move here. But in the process, this will come. Take this methionine, okay, from the peptidal site, क्योंकि पेप्टाइड यहीं पर फॉर्म होता है, और वो ये नहीं काटा नहीं पे, ये और वो इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ऐसे. पकड़ो उसको, इसको पकड़ो ऐसे, खड़े हो जाओ, जाओ, हाँ, कम हियर. नाउ शिफ्ट, तुम्हारा हमारा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट to that seat, sit there, exactly. But now what's the problem? This is an exit site. We do not need you. You can go with the tRNA, and you can bring another methionine with the tRNA later. It can be reused. Okay? So next amino acid is UCU, serine. Who is serine? You are serine.
come, but you cannot come without your own. You need a pass. कौन सा पास होगा दोनों में से? Which one? EFG or EFT? Okay, मुड़ो पीछे मुड़ो दिखाओ तो आइए दिखाओ ना ताकि दिखाओ this serine this is a called serine and यहाँ पर सीक्वेंस कौन सी है UCU okay ये नीचे वाली सीक्वेंस जो हम लिखे नीचे ये नहीं होती है इसमें मगर हमने ताकि तुम लोग समझ सको कोडॉन से यहीं तक है so you will sit here good ये कौन सी साइड है एंड उससे क्या होगा ये निकल जाएगा गुड एंड नाउ EFG will come it will take this दोनों में से तो यहाँ पर बड़ी चेन छोटे पर शिफ्ट होती है तो बड़ी चेन आकर ये कौन सा बॉन्ड बनेगी ये पेप्टाइड बॉन्ड इसी से आसना में शिफ्ट होगा शिफ्ट हो जाओ एक्सिस साइड पे तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ है ना राइबोसोम आगे चला ठीक है ओके ये ऐसा हो गया अब ये कौन सी साइड है अच्छा ये तुम्हारा GDP निकल गया ये कौन सी साइड है एक्सिट साइड दिस टीआरएन कैन ब्रिंग नाउ अनदर अमीनो एसिड और अब नेक्स्ट कौन सा है फॉर्म में but you cannot come like this you have to come with the energy go sit there good now what will happen now EF this will go out or EFG will come GDP will go out TU as well as GDP and PI will be removed and then you have EFG ये ट्रांसलोकेस ये क्या करेगा ये इसको और ये शिफ्ट होता रहेगा इसी से आसना में ठीक है ये सब प्रोसेस चालू होगा एंड दिस विल good you will shift there ओके ये कौन सी साइड है पेप्टिडिल साइड क्योंकि यहीं पर आपके बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं ये तुम्हारी अमीनो एसाइल साइड अमीनो एसाइल मींस सिस्टल टीआरएनए आकर बैठ गया ठीक है दिस इज योर एक्सिस साइड तो अभी कोई जरूरत नहीं जा सकते हैं एंड नेक्स्ट इज योर बोर्ड पर देखो एलानिन GCU गुड सो बीच साइड पर आप बैठेंगे हाँ मगर आप बैठ सकते हो वहां पर अभी नहीं आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप पर एनर्जी नहीं है आप एनर्जी लीजिए आप बैठिए शाबाश तो मतलब दिस वन टेक्स हर हियर शी कैन नॉट गो ऑन हर ओन ये निकल गया ठीक है अब क्या होगा नाउ वी वांट अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन सो दिस विल कम दिस बॉन्ड विल यहां पर ब्रेक एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड here so आप अमीनो एसिड दे दो अमीनो एसिड को मीथेनिन बन रहा है हमें प्रोलीन सीरीन एस्पार्टिक एसिड नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें एमआरएनए की क्यों जरूरत है यहाँ पर क्योंकि इसकी सीक्वेंस एमआरएनए की वजह से हमें मिलेगी नेक्स्ट अब यू विल शिफ्ट ये बाहर निकलेगा गुड हेल्प हो गया Give me pins. Give me naive pins. जाओ मैं इसको पिन उसके पास नहीं कर सकता मगर ये पहले सब यूज करने है ना ठीक हो गया ना ये जुड़ गया किसकी वजह से जुड़ा ठीक है ये एक्सिस साइड पे आ गया
ये प्रोटीन हो गया, आप जाइए। तो सीक्वेंस क्या है? मेथियोनीन, प्रोलीन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानीन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? ग्लूटामीन। प्लीज कम, बट यू विल कम विथ energy. Good. Go. Sit. So which amino acid are you carrying? Glutamine. And the codons of glutamine and it will bind mRNA में से bind होगा। ठीक है? तो ये GDP PI plus EFTU निकल जाएगा। अब क्या होगा? अब ये ट्रांसलोकेस आएगा। It will ये ऊपर आकर ऐसे पूरा आकर इस पर बैठ जाता है। ठीक है? ठीक है, गुड। अब क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगी। ये तो भी होना एक्सोसाइट पे ये चली जाएगी बिकॉज द होल राइबोसोम इज मूविंग, है ना? ये आ गया तुम्हारा पी साइड और ए साइड तुम्हारी अमीनो एसिड से खाली हो गई, आपको कोई जरूरत नहीं, एग्जिट हो जाएगा एग्जिट साइड से। ठीक है, और अमीनो एसिड साइड पर कौन आएगा? कौन सा अमीनो एसिड है? टीआरएनए कौन सा है? पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? ल्यूसिन टीआरएनए, राइट? किस एंजाइम ने बनाया? ल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज। आप यहाँ बैठे थे, थोड़ा उधर की ओर दिखाओ। शाबाश सब बच्चों को, गुड। बैठ जाओ। मगर आप कैसे गई पूरी? आपको इसके साथ जाना, वापस आइए। आपको इसके साथ जाना है, एनर्जी के साथ। यही ले जाएगा तो वहाँ। चलिए बैठिए। अब एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, आप बैठ गए अपनी जगह पर। ठीक है ना? एनर्जी निकल गई, जीडीपी निकल गया, पीआई निकल गया और आईएफटी निकल गया। ओके, और अब ट्रांसलोकेस आएगा टुक टुक और इस पूरे को उठा करके यहाँ पर तुम पकड़ो तो ऊपर अब ये शिफ्ट होगा पूरा कॉम्प्लेक्स। ओके, ये पी साइड वाला एग्जिट साइड पर आ गया, ए साइड वाला पी साइड पे आ गया और फिर से खाली हो गई और अभी कोई जरूरत नहीं आ जाएगी, एग्जिट से एग्जिट हो जाएगी। और कौन सा अमीनो एसिड है? द लास्ट अमीनो एसिड। ओके, गुड। और वो you will come with EFTU. Good. Take this, sit, and now this will go out and it will go out, DDP will go out, PI will go out, and now the translocase will come and make a peptide bond. Take this whole thing, bind it here. मैं भी good. Now UTRNA can go here. Good. शाबाश। अब हमारी प्रोटीन चेंज पूरी होगी फॉर एग्जाम्पल। ओके, जितनी भी बेस पे रखी है। नाउ दिस आपकी जरूरत नहीं। आप अगर आप हमें एक और क्या चाहिए, सिस्टीन चाहिए या क्या ल्यूसीन चाहिए, तो दिस कैन अगेन गो ल्यूसिन टीआरएनए सिंथेसिस विल कम, आई पुट अनदर और ये दोबारा रीयूज हो सकता है। तो आप जाइए, एग्जिट हो जाइए। अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स हुआ। अब फॉर्मूला उठा कर मैं ये रख दूं यहाँ पर। अब इसमें क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम आते हैं, बोलते हैं रिलीज फैक्टर RF1 RF2 RF3। रिलीज फैक्टर आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये टीआरएनए नहीं है, ये प्रोटीन है। ठीक है, इसकी वजह से ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगी, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, डिसोसिएट हो जाएगा और ये आपका टीआरएनए है, पकड़िए उसको, एग्जिट साइड पे जाइए और ये ट्रांसफर होगा और ये प्रोटीन सीक्वेंस फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जहाँ चली जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलाई जाएगी, गोल्गी में चली जाएगी, जो प्रोग्राम जो जहाँ पर डिस्टाइन होगा वहाँ पर प्रोटीन
चला जाएगा, तो रिलीज फैक्टर 1 2 और 3 हो जाएगा। ओके